Let us turn to Luke's Gospel, chapter 18, verse 8. लूका की खुशखबरी 18 की 8 हम पढ़ेंगे। Luke's Gospel, chapter 18, verse 8. लूका की खुशखबरी 18 की 8 We will try to read all together, please. सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। May the living Lord help us to understand the scriptural portion what we have just read. अभी जो हमने खुदा का कलाम का हिस्सा पढ़ा है, इस हिस्से को समझने में जिंदा खुदा हमारी मदद फरमाए। Let us look unto the Lord for Lord's grace and help once again. और एक बार हम मदद मांगते हुए दुआ करेंगे। Our loving and heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, once again we look to you and we thank you, Lord, as a church and Lord individually also, that Lord, as the man of God David praised thee, saying to his own soul, bless the Lord, O my soul. And also, Lord, he says to other group of people, and in the same manner, Lord, we say to our own souls, and we will never forget what you have done for us. Oh Lord, as we now come around thy table, Lord, we want to remember the Lord's death, burial, and resurrection. But before that, we want to examine our lives in the light of the word and set right the things if needs be. And Lord, and thankfully, we want to break the bread. Lord, help us, grant us some word according to our need. We also pray, Lord, that the work that you have started here at Tehoshama may be continued till the last day, and the souls may be added. The souls may be, Lord, gathered to the kingdom of God through work of the cross and by faith. Lord, bless this ministry. We pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. आमीन। Luke 18, verse 8, where we read, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. लूका की खुशखबरी 18 की 8 में हम पढ़ते हैं कि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। खुदावंद यीशु ये सवाल पूछते हैं। By reading this verse, we will certainly come to the conclusion that the Son of Man, meaning the Lord Jesus Christ, will certainly come to this earth. तो इस आयत को पढ़ने से हम यकीनन इस अंजाम तक पहुंच जाते हैं कि इब्ने आदम मतलब खुदावंद यीशु यकीनन इस जमीन पर फिर से रहने के लिए आएंगे। Many are aware that the Lord Jesus Christ has already come into this world. हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु इस दुनिया में आए हैं। But there are only few people who are really aware of Lord's second coming. लेकिन बहुत कम लोग इस जानकारी रखते हैं कि खुदावंद यीशु फिर से वापस आएंगे। There is a day called the last day, and the Lord Jesus Christ is going to come back to the earth. और आखिरत का दिन एक दिन है और उस रोज खुदावंद यीशु आसमान से इस जमीन पर आएंगे। And this very particular verse is bringing a very important question. और ये खास करके आयत जो है हमारे सामने एक सवाल ले आती है। Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। We all know faith is very important aspects of Christian life. हम सब जानते हैं कि यीशुई जिंदगी में ईमान चीज जो होती है वो बहुत अहमियत रखती है। According to Hebrews 6, this is also one of the 6 fundamental principles. इब्रानी की किताब में हम देखते हैं कि आयत नंबर 6 के मुताबिक यीशुई जिंदगी में जो 6 बुनियादी बातें होती हैं उनमें से ये भी एक बात है। And according to the book of the Bible, we will understand that faith is the fundamental foundational principle. और पूरी बाइबल को पढ़ने से हम समझ जाते हैं कि ईमान जो है वो बहुत अहमियत रखने वाली बुनियादी चीज है। So what the word of God says, खुदा का कलाम क्या फरमाता है। according to Ephesians 2:8, एफेसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 8 के मुताबिक by faith we are saved. हम ईमान से नजात पाए हैं। So if there is no faith, then we will not be able to be
be saved. इसका मतलब क्या है? अगर ईमान नहीं होता तो हम नजात नहीं पा सकते। Our journey to heavenly Canaan, that is the new Jerusalem, heavenly place, it will start with the act of faith. हमारा सफर जो है आसमानी कानान या नया यरूशलेम या आसमानी खुदा का मकाम जो है, वहां तक हमारा सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमान से ही शुरू होता है। Paul in all of his epistles, almost especially in Galatians, Romans and also Ephesians, he publicly declares that by works we will not be saved, but by faith we will be saved. और खुदा के कलाम में बार बार लिखा गया हम पाते हैं कि बहुत सारे एफिसी किताब, गलातियों की किताब, इन किताबों में देखते हैं कि हम कामों से नहीं बल्कि ईमान से नजात पाते हैं। Not only we will be saved by faith, हम ईमान से नजात पाते हैं, इतना ही नहीं बल्कि but also we have to live by faith. बल्कि हमें ईमान से हमारी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। So that you can read in Hebrews chapter 10 verse 38. इब्रानी की किताब 10 की 38 में हम ये बात पढ़ते हैं। We are supposed to live by faith. हमें खुदा कहता है हमसे कि हम ईमान से अपनी जिंदगियां बिताएं। And according to 1 Corinthians chapter 5 verse 7, और पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 के मुताबिक we should actually walk even by faith. हमें ईमान में चलते रहना है। And according to Hebrews chapter 11 verse 6, इब्रानी की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 6 के मुताबिक so we cannot please God if we don't have faith in us. अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होता तो हम खुदा के सामने पसंद नहीं आते। So these are very important things about faith. तो ये ईमान को लेकर अहमियत रखने वाली बातें हैं। But the big question the word of God is making question to his pupil is, when the Son of Man cometh, shall he find faith? लेकिन यहाँ पे खुदा के कलाम में एक सवाल जो हमारे सामने आज है, वो सवाल ये है कि जब इब्ने आदम इस जमीन पर आएगा तो क्या जमीन पे वो यकीनन ईमान पाएगा? In all the 4 Gospels, हम अगर 4 खुशखबरियां पढ़ें, we see conversation happening in between the Lord Jesus Christ and his 12 disciples. खुदावंद यीशुआ और उनके 12 चेलों के बीच में कॉन्वर्सेशन या गुफ्तगू होते हुए हम देखते हैं। And the main goal of the Lord Jesus Christ there, it seemed to be he is trying to increase their faith. और इन गुफ्तगू में, इन बातचीतों में खुदावंद यीशुआ का पहला मकसद ये होता था कि इन चेलों का ईमान जो है वो बढ़ाए। That is the part of training for them. ये उनकी जिंदगियों में जो खुदावंद यीशुआ उनको तरबियत देते थे, उस तरबियत में अहम हिस्सा बनता था। They were actually trained for somewhere around about 3.5 years. तकरीबन 3.5 सालों तक खुदावंद यीशुआ ने उनको ट्रेनिंग दिया था। As they were moving on, वो लोग जब आगे बढ़ते थे, as they were moving from place to place, जैसे ही वो लोग एक जगह से लेकर दूसरी जगह में जाते रहते थे, it was a situational training given to them by the Lord Jesus. वो उन दिनों में, उस वक्त में जो तरबियत जरूरी थी, उस तरह की तरबियत खुदावंद यीशुआ देते थे। Why is it so? इस तरह क्यों करते थे? If they do not have proper faith, they will never be able to serve as true disciples. क्योंकि अगर उनके अंदर हकीकी ईमान नहीं रहता तो सच्चे शागिर्द बनकर वो लोग जी नहीं सकेंगे। Lord, knowing that very important fact that he wanted to teach them about faith. और इस अहम बात को समझते हैं यीशुआ खुदावन, इसीलिए उनको ईमान के बारे में खुदावन सिखाते थे। And that's the reason when you are reading all these 4 Gospels, इसीलिए जब आप ये 4 खुशखबरियां पढ़ते रहते हैं, you will identify that the Lord is trying to fix their problem. तो आप जानते हैं पढ़ते पढ़ते कि खुदावंद यीशुआ उनके प्रॉब्लम्स जो होते थे, मतलब तकलीफें जो होती थी, उन्हें सुधारते थे। That is what and how they can become a true disciples going forward. इस तरीके से वो लोग आगे बढ़कर खुदावंद के सच्चे शागिर्द बनकर आगे बढ़ सके थे। So when we read these 4 Gospels, we will understand the Lord was trying to touch about their faith. तो जब हम इन 4 खुशखबरियों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशुआ उनकी जिंदगियों में ईमान को बरकरार करने के लिए कोशिश करते थे। And Lord wanted to teach them principles. इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ उनको उसूल भी सिखाते थे। And by applying those 4 principles, और इन उसूलों को अपनी जिंदगियों में लागू रखने से then what
what will happen is our faith will be increased. हमारा ईमान जो है वो तरक्की पाएगा। And the Lord actually called them sometime as faithless generation. खुदावंद यीशुआ ने एक वक्त में उनको बेईमान गुरो करके भी पुकारे थे। On the other occasions, he called them as O ye of little faith. और एक वक्त खुदावंद यीशुआ ने उन्हें लिटिल फेथ मतलब थोड़ा सा ईमान रखने वाला करके उन्हें पुकारे थे। At least once we can see the Lord calling them as O ye faithless generation. बेइतिकाद वाले करके भी खुदावंद यीशुआ ने उनसे मुखातिब हुए। And on 4 occasions we see that the Lord is calling them as O ye little of faith. और ओ ये लिटिल ऑफ फेथ मतलब कम इतिकाद वाले करके खुदावंद तकरीबन 4 बार उन्हें बताए थे, उनसे बोले थे। 4 times you can see on 4 different occasions. इस तरीके से 4 हालतों में या 4 बार खुदावंद यीशुआ 4 बार उनसे ये बात कहते थे। By looking at these 4 occasions, और ये 4 बार अगर occasions को वाकयात को हम देखेंगे तो Lord's intention is to teach them 4 important principles of faith. अगर इन 4 हवालात को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे खुदावंद यीशुआ ईमान के बारे में 4 उसूल भी सिखाते हैं। And also he wanted to highlight 4 obstacles for faith. इतना ही नहीं बल्कि ईमान के रास्ते में जो रुकावटें होते हैं उन 4 रुकावटों के बारे में भी वहां बात करते हैं। In few minutes, as Lord leads us, we will try to go through those 4 principles and also 4 obstacles. चंद वक्त हम इन बातों को देखेंगे, ईमान को लेकर 4 उसूल क्या हैं और उनके रुकावटें क्या हैं हम देखेंगे। The first incident you can read in chapter 6 verse 30. पहला हवाला हम देखते हैं मत्ती की खुशखबरी 6:30 में। See how the Lord is calling them. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ उन्हें किस तरह पुकारते हैं देखें। Please read. बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो ऐ कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। Here, if you read the first previous verses and then also later some of the verses, you will find that Lord is trying to teach them about anxiety and how to handle the anxiety. यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़े आगे और पीछे अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जो घबराहट होता है इंसान को उसे किस तरीके से उस पर काबू पाएं खुदावंद यीशुआ सिखाते हैं। What shall we eat? हम क्या खाएंगे, what can we wear? हम क्या पहनेंगे, What shall we drink? और क्या पिएंगे, How about our future? और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, How about our family? और हमारा घराना का क्या होगा। So they were taking care of their own future too much. इस तरीके से अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद हो चुके थे। And in that occasion, और उस वाकयात में Lord wanted to teach them very important principle of faith. उस हालत में खुदावंद यीशुआ ईमान के बारे में जो बहुत अहम उसूल एक है वो सिखाना चाहे थे। Here also you see that the Lord is trying to teach his own disciples. यहाँ पे आप देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ अपने खुद के शागिर्दों को ये तालीम दे रहे हैं। And he is trying to show them some of the examples as well. और यहाँ पे आप देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ कुछ मिसाल उनको देते हैं। He showed them the fowls of the air. वो कहते हैं आसमान के परिंदों के बारे में। He showed them the lilies of the field. और वो घास के फूलों के बारे में बताते हैं। Grass of the field. घास के बारे में। So by showing all these things, Lord wanted to teach that, see, I'm going to take care of them. How can you think that I will not take care of you? तो खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं उनको जब अपने काबू में रखता हूं और अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का देखभाल क्यों ना करूंगा। So here the first principle what the Lord is trying to teach them is, तो यहाँ पे पहला उसूल ये है जो खुदावंद यीशुआ अपने लोगों से कहता है। Peter, James and John and other disciples, मतलब पतरस, याकूब, यूहन्ना और बाकी शागिर्दों के साथ, you have left everything. वो कहते हैं कि तुम लोग अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ दिए You हैं। have dedicated your lives to be my disciples. मेरे शागिर्द बनने के लिए अपनी जिंदगी आपने मेरे लिए सौंप दिए। So you came forward and you started walking along with me. आप लोग आगे आए और मेरे साथ चलने के लिए आप रजामंद हो गए। But remember this very important principle in your life. लेकिन याद रखना ये बहुत अहम उसूल जो है आपकी जिंदगी में याद रखना। He
is the principle. यहाँ पे मैं बताता हूँ वो पहला उसूल क्या है, And this is the first principle. और यही पहला उसूल होगा। What is that first वो principle? पहला उसूल क्या है? You have to live by faith. आपको ईमान से जीना पड़ेगा। The first principle is living by faith. पहला उसूल है ईमान से जीना। That is why take therefore no thought for the morrow. इसीलिए कल के बारे में ख्याल मत करना, I will take care of you. आपका देखभाल मैं करूंगा। As far as your life is concerned, you just try to seek my kingdom and my righteousness. आपकी जिंदगी को लेकर आपका इतना ही फिक्र रहे कि आप लोग मेरी रास्तबाजी और मेरी बादशाही के बारे में ख्याल करना। All things shall be added to your life. उसके बाद आपकी जिंदगी में जितनी भी चीजें जरूरी हैं सब कुछ आपको मुहैया किए जाएंगी। This is the first principle of faith in their life. उनकी जिंदगियों में ये पहला उसूल है ईमान को लेकर। We are also called to live by faith. हमें भी खुदा ईमान से जीने के लिए मद्दू करता है। So Christian life is a life of faith and which is supposed to live in faith. तो यीशुई जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की जिंदगी है, ईमान से जीना है हमें। And here Lord wanted to highlight the obstacle. Why and what is that obstacle which is hindering their faith? और यहाँ पे खुदावंद यीशुआ हमें दिखाते हैं कि वो रुकावट क्या है जो उनकी और हमारे ईमान के बीच में आता है। What is that obstacle? वो रुकावट क्या है? Here the obstacle for faith is their thought for tomorrow. यहाँ पे उनकी जिंदगी में ईमान का रुकावट ये है, वो कल के बारे में जो फिक्र है वो रुकावट बन गया है। Or cares of this world. या इस जमीनी या जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचना, Or cares of our future. हमारे मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा फिक्र करना। All these things will act as obstacles in our life. और ये सारी चीजें जो हैं हमारी जिंदगी में रुकावटें बनती हैं। As long as we give place to such things, जब तक हम इन चीजों को हमारी जिंदगी में जगह देते हैं, we will not be able to continue our faith journey. हमारा ईमान का सफर जो है वो आगे हम नहीं ले जाएंगे। Faith will be stopped. ईमान रुक जाएगा। The way of faith will be troubled. ईमान का रास्ता जो है वो डगमगाएगा। There is a great dangerous situation. You may lose your faith. और एक खतरनाक हालत भी हो सकती है आपकी, और वो है आपका ईमान शायद अब खो बैठेंगे। Instead of walking by faith, you may walk by sight. ईमान से चलने के अलावा, चलने के बगैर आप शायद नमूदार चीजों को देखते जाने वाले बन जाएंगे। That is the reason when we are coming for Lord's work or when we are coming to follow the Lord Jesus, the very first important thing is we must know how to live by faith. इसीलिए जब हम खुदावंद यीशुआ के पास आते हैं या उनकी पैरवी करना चाहते हैं तो पहली बात, अहम बात यह है कि हम सीखें कि हम ईमान से ही आगे चलें। Why we should not think too much for the tomorrow? कल के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हमें क्यों नहीं बनना चाहिए? The Lord says, खुदावंद यीशुआ फरमाते हैं, only Gentiles will seek that, but not you and me. गैर कौम लोग जो होते हैं वही लोग कल के बारे में फिक्रमंद बनते रहते हैं, आप और हम नहीं। That is the attitude of Gentiles, not a believer. ये एक यीशुई मोमिन या ईमानदार का रवैया नहीं होता, बल्कि गैर कौमों का रवैया होता है। Sometimes if you speak to a Gentiles, अगर आप कभी एक गैर कौमी इंसान से बात करते हैं, some people are very much worried about their future. गैर कौम लोगों में कुछ लोग मुस्तकबिल को लेकर बहुत फिक्रमंद बनते हैं। So they are very much worried, they are concerned. और मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्र लेकर बहुत गमज़दा होते हैं। Whereas if you go and speak to a true believer, लेकिन अगर आप एक सच्चे हकीकी यीशुई मोमिन से बात करेंगे, in his personal life he may be going through terrible situation. अपनी जिंदगी में शायद वो बहुत मुश्किलात में से गुजरता क्यों ना रहे, So much of lack. बहुत कमियां होती हैं, However, फिर भी he will not be able to find it out on his face. उसके चेहरे पे ये बातें आपको दिखती नहीं हैं। He'll be so happy. वो हमेशा खुश रहता है, Laughing face. वो हमेशा खुशनुमा चेहरे से रहता है, Welcoming face. वो हंसते रहता है, मद्दू करता है सबको। Why? क्यों? The reason is he knew how to live by faith. क्योंकि वो जान चुका है कि ईमान से किस तरह जिया जाता है। So here the Lord Jesus Christ wanted to teach them the first principle in their life. इसी तरह खुदावंद यीशुआ उनकी जिंदगी में ईमान का पहला उसूल सिखा रहे हैं। What is the first principle? कि पहला उसूल क्या है? Living by faith. पहला उसूल है ईमान से जीना। And what is the obstacle
that can actually stop this first principle. और उस पहले उसूल को रोकने का पहला रुकावट भी क्या है? The thought for tomorrow मतलब वो रुकावट ये है कि कल के बारे में फिक्रमंद बनना, or worldly care. या इस जमीनी चीजों के बारे में फिक्रमंद बनना। And we will move to the second principle. अब हम दूसरे उसूल को देखेंगे। In the same the gospel according to Matthew chapter 8 verse 26. मत्ती की खुशखबरी में 8 के 26 में There you read again the same verse being repeated but a different occasion. मत्ती की खुशखबरी 8 के 26 में इन्हीं बातों को दोहराए हम पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे ओकेशन में। We will read from verse 23 26 से हम पढ़ेंगे to 26. 23 23 to 26, brother. 23 से 26 तक हम पढ़ेंगे। जब वो किश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि किश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा को पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। So here we see and we read about the storm. यहाँ पे हम एक तूफान के बारे में पढ़ते हैं। Lord Jesus Christ entered into his ship. और खुदावंद यीशुआ अपनी किश्ती में हैं। The 12 disciples also followed. और खुदावंद यीशुआ के साथ ही साथ ये 12 चेले भी आ चुके हैं। As they were sailing on the sea, और जैसे ही ये सब के सब समुंदर पे चल रहे थे, झील पर चल रहे थे, there arose a great tempest in the sea. वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान आया था। In so much that the ship is being shaken. इतना बड़ा तूफान था कि किश्ती लहरों में छिप गई। And at the time the Lord Jesus Christ was asleep. और उस वक्त खुदावंद यीशुआ सो रहे थे। And his disciples came to him. और उस वक्त खुदावंद यीशुआ के शागिर्द उनके पास आए, woke him up और उन्हें जगाए and saying, Lord save us. और कहने लगे, ए खुदावंद हमें बचा, We perish. हम हलाक हुए जाते हैं, We are in great trouble. हम बड़ी मुसीबत में हैं। Lord help us. खुदावंद हमें बचा, Save us, Lord. खुदावंद हमें हमारी मदद फरमा। Lord Jesus actually is with them. खुदावंद यीशुआ उनके साथ ही वहां मौजूद थे, Not in a different boat. दूसरी किश्ती में भी नहीं थे। If the Lord is in a different boat, maybe they can say this word, Lord, we perish. अगर खुदावंद यीशुआ दूसरी किश्ती में रहते तो वो लोग आकर कह सकते थे कि हमें बचा क्योंकि हम आपके साथ नहीं हैं। But the Lord is in the same boat. लेकिन खुदावंद यीशुआ खुद उसी किश्ती में मौजूद थे। At that time, उस वक्त Lord is saying this word. खुदावंद यीशुआ ये बातें कह रहे हैं। In verse 26, what he says? आयत नंबर 26 में क्या कहते हैं? Why are ye fearful, O ye of little faith? उसने उनसे कहा, ए कम इत्कादो, डरते क्यों हो? Then he arose and rebuked the winds and the sea. There was a great calm. तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। Here the Lord wanted to teach the second principle for them. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ उनको दूसरा उसूल सिखाना चाहते हैं। Actually, as soon as the Lord Jesus Christ got into the boat, he started sleeping. हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ जैसे ही उस किश्ती में दाखिल होते हैं सोने लगे हैं। It looks like the Lord Jesus Christ intentionally is leading this situation here. ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशुआ जानबूझकर इन लोगों को इस हालत में से गुजार रहे हैं। Why is it so? क्यों ऐसा? He wanted to teach them lesson. क्योंकि उनको एक सबक वो सिखाना चाहते हैं। What is that lesson? और वो सबक क्या है? My disciples, ऐ मेरे शागिर्दों, you must know how to follow me by faith. आप लोगों को ये जानना है कि मुझे ईमान से मेरी पैरवी कैसे करें। There what we learned? वहां पे पहली बात हम क्या सीखे हैं? First principle. पहला उसूल क्या है? The first principle is how to live by faith. पहला उसूल ये है कि ईमान से किस तरह जिएं। But in the second principle, लेकिन दूसरा उसूल क्या है? how to follow the Lord with faith, by faith. ईमान से खुदावंद यीशुआ की पैरवी कैसे करते रहें। In the midst of the sea, और इस तूफान के बीच में, boat being shaken, और लहरों में ये किश्ती छिप गई, waves are very heavy, और
और किश्ती हिल रही है The situation is so much of troubling. और मुश्किल में ये लोग फंस रहे हैं, In that condition, you must demonstrate your faith. और इस तकलीफ में अपने ईमान को आपको बरकरार रखना है। And in that condition, you must not stop following the Lord Jesus. इस हालत में भी खुदावंद यीशुआ की पैरवी करना आपको छोड़ना मना है। On the surface of the sea, troubled sea, you must be able to continue your following the Lord Jesus. समुंदर के उस सतह पर उस तूफान में आपको फिर भी खुदावंद यीशुआ के पीछे ही जाना है। But if you carefully read this sentence in verse 26, अगर आप 26 में इस जुमले को पढ़ेंगे, आयत को पढ़ेंगे, we have to carefully read, only then we will be able to understand this. बहुत एहतियात से पढ़ने से ही ये बात समझ में आती है। What he's saying here, खुदावंद यीशुआ क्या फरमाते हैं? why are ye fearful? तो डरते क्यों हो? And O ye of little faith, but before that he is adding one sentence called why are ye fearful? ए कम इत्कादो कहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ ये भी कहते हैं कि डरते क्यों हो? This is the obstacle. ये है रुकावट। What is that? वो रुकावट क्या है? Fear can actually stop or it can act as an obstacle for our faith. डर जो है वो डर हमारे ईमान में एक रुकावट बन सकता है। That is the reason we all know that how many times it has been written that in the Bible fear not. इसीलिए हम जानते हैं कि बाइबल में यहोवा की किताब में बहुत सारी बार ये बात लिखी गई है कि डरो मत। For all the year, like for every day you have a word fear not. हर साल में हर एक दिन के वास्ते, हर एक दिन के लिए लिखा गया है उतनी बार डरो मत। Lord's intention is that we should not be fearful. खुदा का इरादा यह है कि हम मत डरें। That's why he says, why are you fearful? इसीलिए वो कहता है आप लोग डरते क्यों हो? If you allow fear to enter and take control of your life, actually you will lose your faith. अगर आपकी जिंदगी में डर को अगर आप जगह देने लगेंगे तो क्या होगा? आपका डर मिट जाएगा। So the second principle Lord wanted to teach here, तो यहाँ पे दूसरा उसूल जो खुदावंद यीशुआ सिखाना चाहते हो वो ये है, following by faith. वो ये है कि ईमान से उनका पीछा करना। And here also Lord wanted to show one more obstacle, that is fear. और यहाँ भी खुदावंद यीशुआ और एक रुकावट दिखाते हैं और वो ये है कि डर। And the third principle, what we can see, और तीसरा उसूल क्या है? the third principle actually it can be understood in Matthew's Gospel only in chapter 14 verse 31. और इसी किताब में चैप्टर 14 वर्स 31 में हम तीसरे उसूल को हम पढ़ते हैं। Please try to read that verse. यीशुआ ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, ए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? You have to actually understand by reading verse 26 to 33. But in order to save time, we are reading only one verse. आयत नंबर 26 में से लेकर 33 तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ की बात जो है समझ में आती है, लेकिन वक्त कम है इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। Here actually this is an individual walk. यहाँ हम देखते हैं कि इंडिविजुअल वॉक, इनफिरादी चलन। Here we see a person called Peter. यहाँ पे पत्रस करके एक इंसान को हम देखते हैं, शागिर्द को। Of course there are even other disciples also. हकीकत में बाकी और भी शागिर्द हैं। As they were sailing on the boat, लेकिन जब ये लोग किश्ती पर सवार थे, and the disciples saw the Lord Jesus Christ walking on the sea. तो क्या देखते हैं? खुदावंद यीशुआ को दूर से पानी में चलते हुए, पानी के ऊपर चलते हुए आते हुए देखते हैं। They were troubled so much. और वो लोग डर जाते हैं। They said in the among themselves, it is a spirit. तो उन लोगों ने अपने आप में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये एक भूत है। And then the word of God says they cried out for fear.
और उसके बाद खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि वो लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। Here also the obstacle called fear is existing. यहाँ भी डर करके वो जो रुकावट है यहाँ भी मौजूद है। But and in verse 27, लेकिन अगर आप 27वीं आयत पढ़ते हैं, see what the Lord Jesus Christ is saying. यहाँ पे खुदावंद यीशु क्या फरमाते हैं? Straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। Be of good cheer. खातिर जमा रखो। No, never allow fear taking control of your life. आपकी जिंदगी में डर आप पर कभी काबू होने की गुंजाइश ना बने। It is I who am saying to you that be not afraid. मैं तुमसे कहता हूँ कि तू डरो मत। I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा। I am here along with you. मैं तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद हूँ। Then 20 according to verse 28. और उसके बाद 28 के मुताबिक See what Peter is saying. पतरस क्या कहता है सुने। Peter very smart. So now what he is saying is, Lord, even if it is you, prove that I have to walk on the waters. पतरस एक चालाक इंसान जैसा दिखता है और वो कहता है, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। And the Lord said, तब खुदावंद यीशु ने कहा, okay, if it is your will, come. तो खुदावंद यीशु ने कहा अगर चाहता है तो आजा। And then he came down out of the ship. तब पतरस किश्ती से उतरकर निकला। He started walking on the water. यीशु के पास पानी पे चलने लगा। And maybe he has taken one step, two step, or even more. शायद उसने एक कदम या 2 या 3 कदम लिए हैं। So the step count has not been recorded in the Bible. कितने कदम लिया है वो अकाउंट यहाँ लिखा नहीं है। But the word of God says he walked on the waters. लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने पानी पर चला। According to the Holy Bible, और खुदा के पाक कलाम के मुताबिक there are only 2 people who walked on the water. पानी पे चलने वाले लोग सिर्फ 2 हैं। The Lord Jesus Christ, खुदावंद यीशु and then Apostle Peter. और दूसरा है शागिर्द पतरस। Only these 2 people could walk on the water. और ये 2 लोग ही पानी पर चल सके। And he walked on the water for some time. और कुछ देर ये पानी पे चलते गया। As he was walking on the water, जैसे ही वो पानी पे चलते गया, see what is happening around him. उसके चौगिर्द क्या हो रहा है देखिए। How he is being influenced by the external circumstances. और दूसरे उसके चौगिर्द जो हालतें हैं उनका असर इस पर किस तरह पड़े हैं देखें। And actually verse 30 explains that. 30वीं आयत में हम वो बात पढ़ते हैं। When he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried saying, Lord, save me. मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। What was his situation? यहाँ हालत क्या है? As he was walking on the water, जैसे ही वो पानी पे चल रहा था, his goal is to reach the Lord Jesus. उसका मकसद ये था कि खुदावंद यीशु तक पहुंचना The है। Lord Jesus Christ is also standing there. खुदावंद यीशु भी वहाँ खड़े हैं। And there may be some distance in between the Lord Jesus and also Peter. और शायद खुदावंद यीशु के और पतरस के बीच में कुछ फासला है। In order to reach the Lord Jesus Christ, he had to move his legs. और खुदावंद यीशु के पास जाने के लिए पैर हिलाकर कदम बढ़ाकर जाना है। Not on earth. जमीन पर नहीं। That's what we need to understand here. यहाँ पे इस बात पर तवज्जो फरमाना। Peter must walk on water. पतरस को पानी पे चलकर जाना है, Not on earth. जमीन पर नहीं। This is our life. ये है हमारी जिंदगी, This is our faith. ये है हमारा ईमान। We are called to walk on water by faith. हमें खुदा ने इसलिए बुलाया ताकि हम पानी पर चलें। Everybody can actually walk on earth. हाँ, सब लोग जमीन पर चलते हैं। That is all worldly walk. ये जमीनी दुनियावी चाल चलन है। But whereas a spiritual walk, heavenly walk, divine walk, it can even walk on waters. लेकिन एक रूहानी चाल चलन, आसमानी और इलाही चाल चलन जो होता है, ईमान का चाल चलन जो होता है, वो पानी पर भी जायज है। Not only the Lord Jesus, he is walking on water. खुदावंद यीशुआ ही खुद पानी पर चल नहीं रहे थे, बल्कि everybody in the place of Peter, you and me and every believer is supposed to walk on water. हर एक यीशुई मोमिन पतरस के जैसे आप और मैं और हम सब भी पानी पर चल सकते हैं। Water always speaks the word.
पानी का मतलब है दुनिया, meaning that we should not go down, we should not sink into the world. इसका मतलब ये होता है कि हमें दुनिया में डूबना नहीं है। That speaks the victorious life. डूबना नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक फतहयाब जिंदगी जीनी है। Walking on the waters, meaning that a believer he is leading a life of victory on the world. पानी के सतह पर चलने का ये चाल चलन का मतलब ये है कि एक यीशुई मोमिन को दुनिया पर गालिब होकर गलबे की जिंदगी जीनी है। Meaning that the worldly waters cannot bring down Peter into the waters. इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया का पानी जो होता है वो पतरस को डुबा नहीं सकते। That is called victorious life. इसे कहते हैं गलबा की जिंदगी। That is called divine life. ये इसे कहते हैं इलाही जिंदगी। We are called to do that. हमें इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बुलाया गया है। Peter is representing every believer. वहां पे पतरस जो दिखता है वो हर एक यीशुई मोमिन के लिए वो मोमिन को दिखाता है। And now it can be applied to you and me. और यही बात आप पर और मुझ पर भी लागू होती है। But what happened to Peter? लेकिन पतरस को क्या हुआ था? He has taken certain steps. उसने चंद कदम आगे बढ़ाए, But he has observed outer circumstances. लेकिन चौगिर्द जो भी हो रहा था वो सब कुछ वो देखने लगा। Wind is is raising. और वहां पे हवा के झोंके आ रहे थे। So much of dangerous sound is touching his ear. और उसके कानों में बहुत बड़ी बड़ी हवा की आवाजें गूंज रही थी। And then what happened immediately? और उसके बाद फौरन क्या हुआ था? Doubt has come in his mind. उसके दिल में शक आया था। Fear has come. डर आया था। And also doubt also has come. और शक भी आया था। Immediately. और उसी वक्त he was losing faith. वो अपना ईमान खोने लगा। He was not standing on the ground of faith. वो ईमान के जमीन पर टिके नहीं रहा। When you are standing on the ground of faith, you can actually stand on the waters also, not sinking down. जब आप ईमान के जमीन पर टिकेंगे, रहेंगे, चलेंगे, उसके बाद ही आप पानी के सतह पर भी चलेंगे, डूबेंगे नहीं। But what Satan will do? लेकिन सातान क्या करता? It cannot directly attack on you. वो सीधा आकर तुझ पर वार नहीं कर सकता। But he will bring circumstances around you so that your faith will become weaker. लेकिन तेरे चौगिर्द हालात को ऐसा कर देता ताकि आप ईमान में कम पड़ जाएं। Just around you so much of disturbances. आपके चौगिर्द बहुत मुश्किल या तकलीफें वो बढ़ा सकता है। Disturbances may be at your home. आप ये डिस्टर्बेंस जो है ये शायद आपके घर में भी शुरू हो सकता है। Disturbances may be at your working place. और ये डिस्टर्बेंस जो है आपके काम करने की जगह पे भी हो सकता है। Disturbance may be even at your church. और आपके चर्च में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। So he can bring all sorts of all possible disturbances in order to bring down you into the world. इस तरह आपको नीचे खींचकर दुनिया में लाने के लिए वो हर तरह की तकलीफ आपके सामने आपके चौगिर्द बढ़ा सकता है। His goal is that you may not stand properly on the ground of faith. उसका मकसद ये है कि आप ईमान के जमीन पर टिके ना रहें। And then see how Peter is able to handle this. आप देखेंगे कि पतरस इसे किस तरह इस पर गालिब आता है। There is a great question here. यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल एक पैदा Who होता is this Peter? है। ये पतरस कौन है? He is very skilled at swimming, right? पतरस को तो तैरना बहुत अच्छे से आता है ना। He is very smart swimmer. यहाँ वो बहुत अच्छे तैर सकता था। His work is that only. क्योंकि उसका काम ही वही था ना। He had I think thousands of hours of experience on the sea. हजारों घंटों वो शायद समुद्र पे अब तक तैर चुका है। Right, so he can start swimming. इसीलिए डूबना क्यों है, वो तैर सकता था ना। So why he is able to cry like that? तो यहाँ पे ये गुहार क्यों लगा रहा है? See what he says now. अब ये क्या कहता है देखिए। But he did right thing. Sorry.
he did right thing. उसने एक अच्छा काम किया था। Instead of using his own skill, उसने अपने खुद का स्किल जो है उसे इस्तेमाल करने से अलावा sometimes we also do the same thing. हम भी कभी कभार ऐसा ही कर देते ना। What we do? हम क्या करते हैं? I can handle the situation. इस हालत को मैं खुद संभाल सकता हूँ। I know swimming. मुझे तैरना आता है। Like if you go to flight, this pilot experience, अगर आप पायलट सीखने के लिए जाते हैं, they don't count years of experience. वो लोग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कितने सालों का तजुर्बा है ये नहीं पूछेंगे। How they count? वो लोग क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं? The hours of experience. आप कितने घंटों का तजुर्बा रखते हैं वो देखते How हैं। many hours you have experience? कितने घंटों आपने उड़ान भरी? 5,000 hours. 5,000 घंटे, 9,000 hours. 9,000 घंटे। So hours of experience. तो घंटों का तजुर्बा। If you go and speak to Peter, अगर आप पतरस के पास जाकर पूछेंगे, Peter, पतरस how many hours of experience you have? कितने घंटों का तजुर्बा है तेरे पास? And he will look at you. और वो आपके चेहरा देखेगा। Innumerable. मैं शुमार नहीं कर सकता इतने सारे। How? Why? क्यों? कैसे? From the childhood he is able to swim. क्योंकि मैं बचपन से ही तैरना सीख लिया था। It is impossible to count hours. तो मैं घंटों का हिसाब कैसे रखूं? Such is the Peter's experience. इतना है तजुर्बा पतरस का तैरने का। But in that occasion, लेकिन उस हालत में he did not try to use, he did not dare to use his own skill. उसने अपना खुद का स्किल जो है, तजुर्बा जो है, उसे वो मुस्तमिल नहीं रखना चाहा। We need to do the same thing. हमें भी ऐसा ही करना है। But what we do, लेकिन हम क्या करते हैं? when all these situations come around, जब ये सारी हालात हमारे चौगिर्द आएंगी, as we are already skilled, हमें तो बहुत बड़ा तजुर्बा है ना, then we try to use that skill, इसीलिए हमारे तजुर्बे को हम मुस्तमिल रखते हैं, and then we will fail. और हम फेल हो जाते हैं। But Peter did not do that. लेकिन पतरस ने ऐसा कुछ नहीं किया। Thankfully, actually he knew the principle. खुदा का शुक्र है उसे उसूल पता चल गया। See what he says? वो क्या कहता है? In the last portion of the verse, और आयत के आखिर में he cried saying, Lord save me. वो कहता है और पुकार कर कहता है कि खुदावन मुझे बचा ले। Lord save me. Very simple word but very effective. हाँ, वो ये बहुत छोटा सा जुमला है लेकिन बहुत असरदार है। My dearly brother and sister, मेरे प्यारे अजीज भाई बहन, whosoever you are, आप कोई भी क्यों ना हो, maybe your situation also is like this. शायद आपकी हालत भी ऐसी ही कुछ है। You are in tears. शायद आप रो रहे हैं। Your heart is broken almost. शायद आपका दिल अभी टूट गया है। You are having so much of problem at your home. शायद आपके घर में आपके सामने बहुत बड़े तकलीफ हैं। You are having so much of problem personally at your life. और आपकी जिंदगी में, आपकी निजी जिंदगी में शायद बहुत सारी मुश्किलात, तकलीफें बढ़ चुकी हैं। Your situation also is like Peter's situation. शायद आपकी हालत भी पतरस की हालत की तरह है। But what you have to do now? लेकिन आपको अब क्या करना है? You also should pray like this. आपको भी इसी तरह दुआ मांगनी है। Very simple prayer. बहुत आसान छोटी दुआ। By faith you pray this prayer. ईमान से दुआ मांगनी है। Very simple prayer. बहुत आसान दुआ। Lord save me. खुदावंद मुझे बचा ले। Same translation, right? Yeah. Lord save me. खुदावंद मुझे बचा। So just use these words. इतना ही बताना। And let this be your prayer. ये आपका दुआ हो जाए। As you go to bed. आप जब सोने के लिए जाते हैं, as you wake up early in the morning, और जैसे ही आप सुबह सवेरे उठते as हैं, you are going to your workplace, और जैसे ही आप अपने काम करने के मकाम में जाते as हैं, you are going to your kitchen, और किचन में जब आप जाने लगते हैं, whatever the work is, आप किसी भी तरह का काम क्यों ना करें, whatever the day is, और किसी भी दिन क्यों ना बने, in your heart you say this word, आपके दिल में हमेशा कहते रहें, Lord save me. खुदावन मुझे बचा। You see the Lord working for you. आप देखेंगे कि खुदावन आपके लिए काम करते रहेंगे। See what happened to Peter immediately. देखें यहाँ पे फौरन पतरस को क्या हुआ है। In verse 31, 31वीं आयत में there is a word called immediately. That is a very important word. यहाँ पे लिखा हुआ है, फौरन करके लिखा हुआ है, वो लफ्ज बहुत अहमियत रखती है। Immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. खुदावन यीशु ने क्या किया था? फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। Actually Peter started his journey to reach the Lord Jesus. पतरस ने शायद अपना सफर शुरू किया था कि खुदावन यीशु तक पहुंचे। And there might be some dead distance in between. लेकिन बीच में कुछ फासला तो है।
And but how come immediately the Lord was able to catch him? लेकिन देखें कि खुदावंद यीशुआ पतरस अपने पास आने से पहले ही फौरन उसे डूबने से कैसे पकड़ सके? Lord understood that he needs help. खुदावंद यीशुआ को पता चला है कि उसको मदद की जरूरत है। He will not let Peter down. इस खुदावंद यीशुआ पतरस को डूबने नहीं देते हैं। That is the reason Lord came forward, immediately stretched him. इसीलिए खुदावंद यीशुआ फौरन आगे बढ़कर आगे आकर उसे पकड़ लिए And then says this word. और उसके बाद ये बातें कहते हैं। Now we read this very important verse. और अब हम इस बहुत अहम इस बात को पढ़ेंगे जो बहुत अहमियत रखती है। See here what the Lord is saying. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? He is particularly pointing to Peter. वो खुदावंद यीशुआ पतरस को निशाना बनाकर बात कर रहे हैं। There we read, "Wo ye of little faith." वहां पे शुरू में हमने पढ़ा था कि वहां पे खुदावंद यीशुआ कहते थे कि ए कम एतिकादो। But here he says, "O thou of little faith." लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशुआ कहते हैं ए कम एतिकाद, मतलब ये एक इंसान को निशाना बनकर कहते हैं। And he also says, "Wherefore didst thou doubt?" तूने क्यों शक किया? What is the principle here? यहाँ पे उसूल क्या है? Lord wanted to teach them how to walk by faith. खुदावंद यीशुआ उन्हें सिखाना चाहते हैं, उसे सिखाना चाहते हैं कि ईमान से कैसे चलें। Paul also says, पौलुस रसूल भी कहते "Walk हैं by faith, not by sight." ईमान से चलते रहें, ना देखी चीजों से। If you walk by sight, you will fail. अगर आप नमूदार चीजों को देखते जाएंगे तो आप गिर जाएंगे। If you walk by faith, you will be successful. अगर आप ईमान से चलेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। The third principle is walking by faith. तो तीसरा उसूल ये है कि ईमान से चलना। What is the obstacle Lord wanted to highlight here? यहाँ पे खुदावंद यीशुआ तीसरा उसूल क्या, तीसरा रुकावट क्या दिखाते हैं? The third obstacle is doubt. यहाँ पे तीसरा ये रुकावट जो है वो है शक। In the first principle, पहले उसूल में the obstacle is thought for tomorrow. वहां रुकावट क्या था? कल के बारे में सोचना, मुस्तकबिल का फिक्र। In the second instance, और दूसरे वाक़े में fear is an obstacle. Fear is an obstacle. डर था वो रुकावट। In the third instance, और तीसरे वाक़े में doubt also is an obstacle. शक भी एक रुकावट है। That's why we should not doubt. इसीलिए हमें शक करना मना है। We all know the great apostle called Thomas. हम सब जानते हैं बड़ा खुदावंद का शागिर्द था, रसूल था, उसका नाम था थोमा। And the Lord Jesus Christ died on the cross. खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब हुए, He was buried. गाड़े गए, He has risen again on the third day. तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। But he did not believe. लेकिन तोमा ने ईमान नहीं लाया तो उस बात पर। Because his thinking was he was walking by he is always believing by sight but not by faith. क्योंकि वो हमेशा नमूदार चीजों के मुताबिक चलता था, ईमान से नहीं। And he says this word, वो इसीलिए कहता है I will not believe. मैं यकीन नहीं लाऊंगा। Lord Jesus did not rise again. खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से नहीं जी उठे, बोला Unless I see him. अगर जब तक मैं उसे ना देखूं, unless I put my finger into the wounds of his body and touch it and feel, only then I will believe. उसके जिस्म में जो जख्म हैं उन पर मेरी उंगली चलाकर मैं जब तक ना देखूं खुद, तब तक मैं ईमान नहीं लाऊंगा करके बोला। And then one day Lord Jesus appeared to them. तो एक दिन जब वो सब लोग शामिल थे तो उनके दरमियान खुदावंद यीशु अपने आप ज़ुहूर में आए। After resurrection, मुर्दों में से जी उठने के बाद the Lord Jesus appeared unto them खुदावंद यीशु उनको दिखाई दिए। and says to Thomas, तब तोमा से खुदावंद यीशु कहते हैं, why do you doubt? तू क्यों शक किया? So doubt also is a great obstacle. तो शक जो है ये भी बहुत बड़ा रुकावट है। It will stop our faith. हमारे ईमान को वो रोक देता है। It will shake our ground of faith. और हमारा ईमान का जमीन जो है उसे वो हिला देता है। We should learn how to walk by faith. हमें पता रहना चाहिए कि हमें ईमान से कैसे चलना है। So three principles we learned here. तो आज हमने तीन उसूल आज हमने यहाँ देखी हैं। Living by faith, वो पहला उसूल है ईमान से जीना, and walking by faith, ईमान से चलना, and also following by faith. और ईमान से आगे बढ़ना या पीछे करना। And fourthly, और चौथी बात chapter 16 verse 8, brother. 16 की 8, 16 verse 8. 16 की 8।
Here also again you read the same phrase. यहाँ भी आप कम इतिकादो करके पढ़ते हैं। Chapter 16 verse 8. 16 की 8 में So we will read this verse again. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? यीशुआ ने ये मालूम करके कहा, ए कम इतिकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं। Here Lord wanted to teach them fourth principle. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ उनको चौथा उसूल सिखाना चाहते हैं। The fourth principle here is serving by faith. चौथा उसूल ये है कि ईमान से खिदमत गुजारी करना। So the Lord Jesus Christ was moving from one city to other. हम देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ एक शहर से दूसरे शहर में जाते रहते थे। And when they went to certain place, और एक शहर में जब गए, so the disciples were reasoning among themselves. वहां पे शागिर्द लोग जो थे वो लोग आपस में बहस कर रहे थे। Why they reasoned like that? वो लोग ऐसा बहस या चर्चा क्यों कर रहे Lord थे? has said one important word there. क्योंकि वहां पे खुदावंद यीशुआ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। In verse 6 what he says? आयत नंबर 6 में क्या कहते हैं? Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. खबरदार फरीसियों और सदुकियों के खमीर से होशियार रहना। And then they started reasoning among themselves. और उसके बाद वो लोग अपने आप में चर्चा कर रहे थे। What is their reasoning? उनका चर्चा क्या था? We did not bring we did not bring bread. हमने रोटियां नहीं लाई। That is the reason what the Lord is saying. खुदावंद यीशुआ इसीलिए ये बातें कह रहे हैं करके उन्होंने सोचा। But in fact that was not the Lord said to them. लेकिन हकीकत में ये बातें खुदावंद कह नहीं रहे थे। But in verse 8 then Lord is saying this is very important verse. लेकिन 8वीं आयत में खुदावंद यीशुआ ने बहुत अहमियत रखने वाली ये बातें कही। Jesus perceived. यीशुआ ने मालूम करके Then he says, O ye of little faith, why reason ye among yourselves? ए कम इत्कादों, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो? Do ye not yet understand? Neither remember the 5 loaves of the 5,000, how many baskets he took up? नबी आयत क्या आप तक नहीं समझते और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं और ना ये कि कितनी कटोरियां उठाई? In just previous chapter. और इसके पहले के बाब में In just few weeks of time, not even few weeks. I think it is just a day span. सिर्फ कुछ दिन पहले ही ऐसा किया था खुदावंद यीशुआ। Lord has done great miracle. खुदावंद यीशुआ ने बहुत बड़ा मुआजिजा दिखाया था। What is that miracle? वो मुआजिजा क्या था? By using 5 loaves, he has actually fed 5,000 people. सिर्फ 5 रोटियां लेके 5,000 लोगों को रोटियां दी थी। 5 loaves can be enough for how many? 5 रोटियां कितनों को काफी होती हैं? If somebody who can actually eat well, then all 5 is for one person. अगर एक इंसान अच्छा सा खाने वाला है तो 5 रोटियां एक इंसान खत्म करेगा। But how about 5,000 people? लेकिन 5,000 लोगों को 5 रोटियां कैसे तकसीम करना? The Lord Jesus multiplied these 5 loaves so that it is enough for all 5,000 people. खुदावंद यीशुआ ने इन 5 रोटियों को बढ़ाकर मल्टीप्लाई किया ताकि ये 5,000 लोगों को ये काफी हो जाएं। They just saw that. वो लोग वो मुआजिजा देख चुके थे। They observed it. वो उन लोगों ने गौर किया था। So they should, by that they should learn, okay, Lord can make even bread as and when we need. तो उनको पता चल जाना चाहिए था कि खुदावंद यीशुआ जरूरत के मुताबिक हमारे वास्ते रोटियां बना सकते हैं। But what they're saying here? लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? They started reasoning among themselves. वो लोग अपने आप में चर्चा करते हैं। Why we forgot to bring bread? हम रोटियां लाना कैसे भूल गए? What to do now? अब क्या करें? So much of confusion among them. अब उनके अंदर बड़ी तशवीश आ गई। What about their faith? उनका ईमान का क्या हुआ? What about their past experience? और उनके माजी के तजुर्बा क्या हुआ? Just a few days ago they have seen miracle. चंद दिन पहले ही उन्होंने एक बड़ा मौजिजा देखा था। So being disciples, खुदा के शागिद being Lord's workers, खुदावंद के शागिद होते हुए और खादिम होते हुए, being followers of the Lord Jesus, और खुदावंद यीशुआ की पैरवी करने वाले होते now हुए their faith has been shaken. अब इनका ईमान जो है वो हिल गया। They started reasoning among themselves. वो लोग अपने आप में चर्चा करने लगे। What is the reason?
और ये वजह क्या थी? The Lord is trying to show an obstacle here. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ एक रुकावट दिखा रहे हैं। Verse 9 says, आयत नंबर 9, Do ye not yet understand, neither remember? क्या अब तक नहीं समझते? Not understanding and not remembering also. That is the problem. समझना, नहीं समझना और नहीं याद रखना, यही तकलीफ है। If you do not understand what God has done in the past, माजी में खुदा ने जो कुछ किया अगर आप समझते नहीं हैं, or when you do not remember what God has done for you in the past, या अगर आप भूल भी जाते हैं कि खुदा ने माजी में आपके लिए क्या किया था, what will happen? क्या होता है? Always doubtful thoughts will come. हमेशा शक व शुबा के ख्यालात आते हैं। Reasoning will come. चर्चा होता है, बहस होता है, No use out of that. उससे कुछ फायदा नहीं होता। Then Lord is actually rebuking them. आप खुदावंद उनको झिड़कते हैं। You are my disciples. आप मेरे शागिद हैं। I have manifested my glory. मेरा जलाल आपके सामने मैंने जाहिर किया। You have seen how 5 loaves have been fed for 5,000 people. आपने देखा कि 5,000 लोगों को मैंने किस तरह 5 रोटियां तकसीम की। How soon you forgot it immediately? आपने इतना जल्दी कैसे भूल गया? You did not understand it. आप लोग इसे समझे नहीं। So here the fourth principle is, तो यहाँ पे चौथा उसूल ये है, serving. We have to serve by faith alone. हमें ईमान से ही खिदमत गुजारी करनी है। These are the 4 principles the Lord wanted to teach them. हमारे खुदावंद यीशुआ ये 4 उसूल उनको सिखाना चाहते हैं। Let us try to recap them. और इन बातों को हम एक बार और देखेंगे। We should live by faith. हमें ईमान से जीना है। That is the first principle. ये पहला उसूल है। And the second principle, और दूसरा उसूल ये है, following by faith. ईमान से खुदावंद यीशुआ का पैरवी करना है। And third principle और is, तीसरा उसूल है, walking by faith. ईमान से चलना है। And the fourth principle और is, चौथा उसूल है, serving by faith. ईमान से खिदमत गुजारी करना। And in all these 4 occasions, और इन 4 वाकयात में Lord also wanted to teach them about 4 obstacles. खुदावंद यीशुआ 4 रुकावटें उन्हें सिखा रहे हैं। The first obstacle is पहला रुकावट, thought for tomorrow, और कल के बारे में ख्याल ज्यादा cares करना, of this world. इस दुनिया के बारे में फिक्रमंद होना। And the second obstacle, और दूसरा रुकावट, fear. डर। And third obstacle, और तीसरा रुकावट, doubt. शक। And fourth obstacle, और चौथा रुकावट, lack of understanding or not remembering our past. हाँ, हमारी माजी को या माजी तजर्बे को उनको नजरअंदाज करना या उनको भूल जाना। So without faith we cannot please the Lord. तो ईमान के बगैर हम खुदा उनको पसंद नहीं आएंगे। We are supposed to live by faith. हमें ईमान के साथ जीना है। We are supposed to walk by faith. हमें ईमान के साथ चलना है। So now we will read again with the same verse, Luke 18:8. और अब हम वापस आएंगे और लूका की खुशखबरी 18 की 8 पढ़ेंगे। And we will try to read this verse again. और इस आयत को और एक बार पढ़ेंगे। I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? As we come around the Lord's table, जब जैसे ही हम खुदा की मेज के इर्द गिर्द आते हैं, what we should do? हमें क्या करना चाहिए? We need to examine whether we have faith or not. हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हमारे अंदर ईमान है या नहीं। We need to examine whether we are the people of faith or not. हम ईमान के लोग हैं या नहीं, हमें परखना चाहिए। We need to examine whether we are able to walk on the waters. हम पानी पे चल रहे हैं या नहीं, हमें पता करना चाहिए। Are we able to serve the Lord by faith? ईमान के साथ खुदावंद की खिदमत गुजारी कर रहे हैं या नहीं? Are we able to live by faith? हम ईमान से जी रहे हैं या नहीं? Let us read one more scriptural portion. और एक खुदा का कलाम पढ़ेंगे, हिस्सा पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 13 verse 5. दूसरा कुरिन्थियों की किताब 13वां बाब 5वीं आयत। Please read. तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। We all will try to read. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। All together. और सब मिलकर पढ़ेंगे। Examine yourself whether ye be in the faith. Prove your own selves.
Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So what he says is, examine yourself whether ye be in the faith. यहाँ पे क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि आप अपने आप को जांचो कि आप ईमान में हैं या नहीं। The Lord's table has been set in our midst. खुदा की मेज जो है हमारे सामने रखी गई है। We take part in that by showing our faith upon him. और खुदावंद यीशुआ पे हमारा ईमान जो है उसे दिखाते हुए हम इस मेज में हाथ डालेंगे। Not only that, we remember the Lord's death, burial and resurrection. इतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदावंद यीशुआ का उनकी मौत और उनका गाड़ा जाना और मुर्दों में से फिर से जी उठना इन बातों को भी याद करेंगे। With a thankful heart we break the bread. और शुक्र अदा करते हुए हम रोटी तोड़ेंगे। We thank the Lord for he has been broken on the cross. हम खुदा का शुक्र इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए सलीब पर तोड़ा गया है। He shed his blood on the cross. वो सलीब पर अपना खून बहाया है। In his blood we have forgiveness. उसके खून में हमारी मुआफी है। We are now reconciled to Heavenly Father. अब हम खुदावंद आसमानी बाप के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। So all these things we are trying to remember when we try to break the bread. और जैसे ही हम ये रोटी तोड़ेंगे तो इन सारी बातों को याद करते हुए तोड़ेंगे। But the very important thing is, लेकिन इन सब चीजों में अहमियत ये बात रखती है are we following these 4 principles? कि हम इन 4 उसूलों के मुताबिक जी रहे हैं या नहीं। Or is there any one or all of those obstacles are influencing our life? या हमारी जिंदगी में ये रुकावटें ये क्या सारे के सारे रुकावटें हमारी जिंदगी में रहते हैं या कैसा है? That's why Paul says in Corinthians, as we just read, examine yourself whether you be in the faith or not. इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल ने भी कहा था कि अपने आप को जांचो कि आप ईमान में हैं या नहीं। And this table also says that Lord loves you. और ये मेज जो है ये बताती है कि खुदावंद आपसे मोहब्बत रखते हैं। Lord's body is broken for you. खुदावंद यीशुआ का बदन आपके वास्ते तोड़ा गया है। He died on the cross and he is buried. He is also risen again on the 3rd day victoriously for the sake of you. आपके वास्ते खुदावंद यीशुआ मसलूब मकतूल हुए और गाड़े गए और तीसरे दिन वो मौत पर गलबा हासिल करके आपके वास्ते जिए। And according to the book of Revelation, और मुकाशिफा के किताब के मुताबिक he says, behold, I am alive. वो खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि देखो मैं जिंदा हूँ। Jesus is alive. खुदावंद यीशुआ जिंदा है। So his spirit is in our midst. और खुदावंद यीशुआ की रूह जो है with such fear, हमारे दरमियान है। with such fear, और अब ये डर मानते हुए let us commit our lives into the hands of the Lord Jesus. हमारी जिंदगियां खुदावंद यीशुआ के हाथ के सुपुर्द करेंगे। And we, after proper examination, after set writing the things, then we take part in Lord's table. हम अपनी जिंदगी को सुधार कर गलतियों को सुधार कर इस मेज में हाथ डालेंगे। May the Lord help us. खुदा हमारी मदद फरमाए।